Babita, Shandeep, Jyoti Pandya and Vijay Sharma. A round of applause, ladies and gentlemen, all the way from INSD Kandirupalli, Mumbai. A round of applause from the audience for them, please. Janavni Dhamshi. Ladies and gentlemen, please give it up for INSD Kolkata. Janavni from INSD Pune, all the way from Pune. Give it up for them, please, ladies and gentlemen. The man behind International School of Design, founder and chairman, Mr. Sanjay Agarwal, and executive director, Mr. Pranav. Great man. Come on, we need more noise than that. I think a bigger round of applause. Those are some fantastic designs on stage. I have to say I'm thoroughly impressed. I can't believe that this is some of the students' first time designing and they've come up with such amazing collections. It is my absolute honor to be here in front of all you wonderful people. I thoroughly enjoyed the show from backstage with all the chaos and everybody's really trying to work hard to put their best foot forward. A couple of years ago, I was there in backstage. I started as a model. So it's nice to come back to the ramp in a different capacity, and I think that I have Almighty to thank, and I think hard work always pays off. So hard work मुझे बहुत दिख रहा था पीछे. It was like क्या हो रहा है, everything. It was nice to see. But I'm really grateful to be here. Sanjay ji and Pranav, I know that he works really hard. I've seen it myself. So I think a big round of applause should be for both of them right here, who have executed this so beautifully. And I hope that INSD continues to grow from 75 to 70. Fashion icon goes to Miss Shreya Shaw from INSD Anand. Give a huge round of applause for Shreya, everyone. A round of applause, please. We request the same direction of INSD Anand, Mrs. Amita Gupta and Mr. Vishal Gupta to kindly accompany Miss Shreya on stage to receive the award. Our beloved partners, please, Amita ji, Vishal ji. Let's give a huge round of applause, ladies and gentlemen. The next award for Rising Star Designer goes to. Can we have any guesses? इंट्रोडक्शन आपका प्लीज बताएं थोड़ा। जी मैं इंडिया का एकमात्र कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर हूँ। इंडिया में दूसरा कोई क्रिएटिव कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर अभी तक नहीं हुआ है। सालों हो गए मुझे कॉन्सेप्ट की दुनिया में फ़ैशन को कॉन्सेप्चुअल वे में प्रेजेंट करते हुए, और अभी तक इंडिया को दूसरा कोई कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर नहीं मिला है। कल CRW में मेरा कॉन्सेप्ट किरदार उतरा था, किरदार द जर्नी ऑफ जोकर, द पेनफुल जर्नी। और आज मैं CRW डे 2 में आया हूँ अपने NGO निवाला को प्रमोट करने। मेरे साथ हैं सुनील चौहान जी जो डायरेक्टर हैं निवाला के। हम लोगों ने सामंजस्य से आपसी भूखे बच्चों को और भूखे जीव जंतुओं को खाना खिलाने के लिए कि ताकि कोई भूखा न सोए, ये NGO स्टार्ट किया है। और ये बहुत खूबसूरत प्रयास है जिसमें जीवों को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जा रही है जितनी कि इंसानों को दी जाए। निवाला हमारे हाथ से हर एक उस मुंह को है जो भूखा है, जिसे ज़रूरत है, चाहे वो किसी जीव का हो, जंतु का हो, पंछी का हो या इंसान का हो। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली है। मैं जब से मेरा जन्म हुआ है, मैं अब तक मेरी माँ को सुबह सुबह छोटे छोटे आटे की गोलियाँ बना के चींटियों के बिल में डालते हुए देखता आया हूँ। पानी के बर्तन में जो रखते हुए आया हूँ जो गर्मियों में पंछियों के लिए। तो बहुत टाइम से ये था, और जब सुनील जी मिले तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे एक डिसेंट सोल की ज़रूरत थी, और हम दोनों ने मिलके निवाला शुरू किया है। और अभी इसका लॉन्च हुआ है। इसका बहुत जल्दी मेरे सोशल जितने भी कॉन्सेप्ट उतरेंगे वो निवाला को ही हम प्रमोट करेंगे उसमें।
यहाँ पर जो टैलेंट देखा हमने, बहुत बेहतरीन टैलेंट हैं लोगों के पास, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी एक पार्ट बन के रहता है, एक बड़ा एक डिस्टेंस होता चला जा रहा है लोगों के बीच में इस फैशन शो को देख। मुझे ऐसा लगता है फैशन जो है वो एंडलेस लर्निंग देता है। अगर कोई मेरे जैसा जो मीनिंगफुल फैशन या फैशन विद लेसन को रिप्रेजेंट करता हो तो मैं फैशन से हमारे यूथ को बहुत सारी प्रेरणा दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है फैशन सिर्फ प्रस्तुति नहीं है, वो प्रेजेंटेशन नहीं है, वो एक लर्निंग का सोर्स है। और क्योंकि हमारे यूथ का इसमें बहुत इंटरेस्ट है, तो अगर हम थोड़ा सा भी इंटेलेक्चुअल होकर सोचें और डीप थिंकिंग रखें, नीडफुल डायरेक्शन दें, तो हम फैशन के माध्यम से हमारे जो भी यूथ हैं उन्हें बहुत सारी प्रेरणाएं दे सकते हैं, बहुत सारे लेसन सिखा सकते हैं जो कि उन्हें लाइफ टाइम तक उनके साथ कैरी ऑन रहेंगे। सीजन के हिसाब से हम क्या से देखते हैं कि हम टैलेंट किस तरीके से लेते हैं सीजनली? मुझे ऐसा लगता है डिफरेंट होता नहीं, हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली मुझे ज़्यादातर विंटर सीज़न बहुत पसंद है। बिकॉज विंटर में मुझे लगता है फैशन इंडस्ट्री का जो सीज़न होता है वो विंटर होता है और वेडिंग होता है, दोनों ही सर्दियों में आते हैं। समर्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, बिकॉज मैं अपने परिवार के सहयोग से इस इंडस्ट्री में हूँ और हम लोग बिकनी और इस तरह के वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। हम भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ओत प्रोत ही रखते हैं अपने फैशन को, इसलिए हमने अपना NGO रखा है। तो मेरे लिए विंटर और वेडिंग जो सीज़न होता है वो फैशन के लिए है। और बिकॉज मैं एक प्रोफेसर हूँ और एजुकेशन इंडस्ट्री से हूँ, तो गर्मियों में मैं बच्चों को पढ़ाकर अपना कर्तव्य पूरा करता हूँ। खादी को किस तरीके से देखते हैं? तो खादी के लिए भी कॉन्सेप्ट बनाया है और आगे भी बनाता रहूँगा। और कोई भी ऐसी चीज़ जो भारतीयता, मुझे ऐसा लगता है जरी, खादी और फिलीग्री, टसर बंधेज, ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ओत प्रोत फैशन स्ट्रीम्स हैं और हमें इस पर ज़रूर काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर फैशन शो में ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि इंडियनिटी से जुड़े हुए जो कनेक्टेड हैं कम से कम 8-10 स्टाइल मैप्स रिप्रेजेंट किए जाएं, ताकि वेस्टर्न कल्चर के आगे हमारी भारतीयता का हास ना हो। स्टार्टअप बहुत जुड़ रहा है इसमें, अब धीरे धीरे नए नए बच्चे जो स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, अपने कामों को शुरू कर रहे हैं, क्या देखते हैं? स्टार्टअप देखिए, मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो फैशन की दुनिया में आने का कोई खास कारण क्या रहा आपके, बता सकते हैं? इंस्पिरेशन किससे मिली? जी, मैं फ़ैशन की दुनिया में नहीं आना चाहता था। आई यूज़ टू बी अ पार्ट ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री एंड आई यूज़ टू बी अ प्रोफेसर। तो एक कॉलेज में ऐसे ही कोई फेस्ट हुआ था और मुझे लगा कि सब लोग तो फ़ैशन उतार रहे हैं, मैं क्यों ना महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उतार दूं। तो उस समय इतना दिमाग नहीं चलता था, तो हम लोगों ने एक गाउन ले लिया और एक टाई ले ली, एक कागज़ ले लिया, ऐसे कुछ 5-7 चीज़ों से मैंने एक मटकी ले ली, उसको हल्का सा कलर करके उसमें पुरानी मम्मी की ज्वेलरी भर दी, एक मम्मी का ही लहंगा ले लिया। ये पहले की बात है। और मैंने कॉन्सेप्ट बनाया नाइटमेयर्स। कितना टाइम आपको मुझे हो गए 15-16 साल। 15-16 साल। तो वो एक बहुत ही हिट हुआ वो कॉन्सेप्ट। और अगले दिन जब मैंने, मेरे डैड ने मुझे जगा के बोला कि बेटा आपका अखबार में फ़ोटो आया, तो मीडिया जो है ना वो सर्वे सर्वा है। तो पहला कदम भी मीडिया के साथ ही था और आज भी मैं आप लोगों के समकक्ष खड़ा हूँ, आप लोगों के सहयोग। तो ये हम आपके साथ हैं हमेशा अभिषेक जी। और मैं अभी सुन रहा था कि परंपराओं की बात कर रहे थे, तो अभी कौन से शहर को आप बिलोंग करते हैं भारत के? जी, मैं छोटे से शहर अलवर से हूँ, बट मुझे काफ़ी लंबा, हाँ जी, बट बहुत लंबा समय मुझे दिल्ली में रहते हो गया। माता पिता मेरे अलवर में ही रहते हैं, भाई बहन जयपुर में रहते हैं, बट मम्मी पापा संभालने आते रहते हैं। अब तो खैर वो उम्र है कि मुझे जाना होता है उन्हें संभालने, बट जब मुझे ज़रूरत थी तो वो आया करते थे। दो फील्ड आपने बताई, एजुकेशन और फैशन। तो फैशन में आपको ज़्यादा मज़ा आया कि एजुकेशन? मुझे सिखाने में मज़ा आता है, अब वो फैशन हो या एजुकेशन हो। अगर मेरे किसी भी एक्शन से मेरे किसी भी यूथ को या मेरे किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी सीख मिलती है, तो मेरे लिए फ़ैशन हो या एजुकेशन हो मैटर नहीं करता। मैटर करता है मेरा मार्गदर्शन और सामने वाले का एक्सेप्ट करना, उसका एक्सेप्टेंस। और मुझे लगता है ये दो चीज़ें ही पूरी दुनिया इन्हीं पे टिकी है, मार्गदर्शन और एक्सेप्टेंस। तो ये अभिषेक जी हैं जो बता रहे थे कि किस प्रकार से जो एक्सपेक्टेशन और जो मतलब संभावनाओं की बात उन्होंने कही है, और कहीं ना कहीं उनकी बात काफ़ी हद तक ठीक नज़र आती है। परंपराओं की बात करते हुए खादी से लेके वो चिकन तक आए, जरी तक, जरी, जी जी जी, उन सब तक आए। अब देखने वाली बात यह है कि जो उन्होंने अपने उद्देश्य बताए वो कहाँ तक उसमें कामयाब होते हैं। दक्षिण दिल्ली से मैं अजीत कुमार। कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं INSD के, और किस तरीके से, किस शिद्दत के साथ वो इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और कितने
ज़ोर शोर से चला रहे हैं और क्या उनका उद्देश्य है और कहाँ तक वो पहुँच चुके हैं, उन शख्स से हम आपकी मुलाकात कराते हैं, उन्हें रूबरू कराते हैं। INSD से जो हैं फाउंडर, आपका पूरा परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम संजय अग्रवाल है और मैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन INSD का फाउंडर हूँ। हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है और हमारे ऑल ओवर इंडिया 21 स्टेट्स में 75 सेंटर्स हैं और करीब 20,000 बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। तो आज हमने यहाँ दिल्ली में एक शोकेस किया था, फैशन शो, जिसमें हमारे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आए और उन्होंने अपने टैलेंट को शोकेस किया यहाँ पर। सो हमने इसको ऑल इंडिया एनुअल टैलेंट शोकेस का नाम दिया है और इसमें हमारे पास मुंबई से, भिलाई से, अमृतसर से, कोयम्बटूर से, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से हमारे जो सेंटर्स हैं वहाँ से सब स्टूडेंट्स आए, उनके डायरेक्टर्स आए और उन्होंने यहाँ पर आके अपना टैलेंट शोकेस किया। लोगों ने भाग लिया इसमें इस बार हमारे 60 स्टूडेंट्स थे, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, जिन्होंने इस बार पार्टिसिपेट किया शो में। और आप ये मान लीजिए कि करीब 400 स्टूडेंट्स में से हमने ये 60 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करे थे और मतलब कलेक्शन बहुत ही अच्छी थी। और आप ये मान लीजिए कि इन्होंने जो फैब्रिक्स यूज़ किए वो सारे सस्टेनेबल थे, या जो जितने भी आइडियाज़ थे उनके वो बहुत मॉडर्न आइडियाज़ थे और काफ़ी आप समझ सकते हैं कि जैसे ग्लोबल डिज़ाइनर जैसे होते हैं, इंडिया में बैठ के वो ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा शोकेस था। सो वी आर वेरी हैप्पी। कोई खास कलेक्शन जो आपको लगता हो कि ये सबसे टॉप है, तो उसके बारे में कुछ कहना? देखिए जी, हमारे लिए तो सारे ही बच्चे हमारे लिए टॉप हैं और हम कभी फ़र्क नहीं करते अपने बच्चों में। हर एक बच्चे ने बहुत अच्छा कलेक्शन दिया था क्योंकि उनकी सबकी थीम्स अलग अलग थी और उनका जो स्टाइल ऑफ क्रिएशन था या जो उनका डिज़ाइन था वो सबका बहुत यूनिक था। तो इसीलिए रेट करना कि कौन अच्छा था कौन बुरा था, कहते हैं ना, एक माँ बाप के लिए उनके सब बच्चे बराबर हैं। राज्य के जुड़े हुए जो प्रधान हैं उनका भी फैशन हमने यहाँ पर देखा और अलग क्रिएटिविटी था। हाँ जी, सी देखिए क्या है कि महाराष्ट्र का देखिए, राजस्थान का भी है, गुजरात का। हाँ जी, देखिए क्या होता है कि जब हम हमारे कोई भी सेंटर खुलता है कहीं भी भारत में, तो हमारा एक स्पेशल टीचिंग मेथड है, एक हमारा तरीका है पढ़ाने का, एक हमारा सिलेबस है जिसको सब लोग सेम सिलेबस को फॉलो करते हैं, सबकी टीचिंग बिल्कुल सेम रहती है। तो आप ये समझ के चलिए कि जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है, चाहे वो किसी भी कोने में हो देश के, वो सेम होता है, एजुकेशन सेम होती है, इसलिए उसकी आउटपुट भी सेम आती है। और हमारा मकसद ये रहता है कि जो निटी ग्रिटीज़ हैं इस फील्ड की वो सब बच्चा समझ सके और शुरू से लेकर आखिरी तक उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो सके। बॉयज़ एंड गर्ल्स में किसको आप ज़्यादा नंबर देंगे? 10 अगर आपको 10 में से नंबर? हाँ जी, बॉयज़ एंड गर्ल्स में से किसको ज़्यादा नंबर? देखिए जी, चांस की बात है कि 60 में से सिर्फ 2 ही लड़के थे, तो कंपटीशन कोई ज़्यादा नहीं था, बट दोनों का काम बहुत अच्छा था। मतलब जैसे दो बच्चों को कहने मतलब एक इंडिविजुअल को और एक टीम को हमने फाउंडर्स अवार्ड दिया, जिसमें हमने कैश रिवॉर्ड दिया उनको, टीम को 10,000 का इनाम और जो इंडिविजुअल स्टूडेंट था उसको 7,500 का इनाम। तो इस तरह से हमने उसको शोकेस किया। तो ये अग्रवाल साहब थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने और कितने समय से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और कितने लोग हैं जो इस प्रोग्राम के साथ में। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे वो सभी टीम जो थी उनके लिए वो सभी बराबर हैं और किसी तरीके से उनमें भेदभाव नहीं करते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो उनके शब्दों में मैं कहूँ कि सभी बच्चे माता पिता के लिए बराबर होते हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि अग्रवाल साहब अपने इस मुहिम को लेकर कहाँ तक आगे चल पाते हैं। दक्षिण दिल्ली से मैं अजीत कुमार।